Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing really well. So I was just thinking that maybe some of you are having problem in learning answers of the questions. So that is why today I'm going to record this video to clarify these questions that I have provided to you. These are from our notes. So let's read them together in video one by one and explain them to you. How can a rainy day be enjoyed? Question number one, rainy day को कैसे enjoy किया जा सकता है? So it's an open-ended question. It is not exactly from the poem. So it is up to us that how we give answer to it. यहाँ पर जो हमने आंसर लिखा हुआ है, a rainy day can be enjoyed by listening to the sound the rain creates. One can enjoy the rainy day by watching the scenes of rainfall. Some people may go to parks with their families while some may like to bath in the rain. So हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, लोग चाहें तो पार्क में जाकर एंजॉय करते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, कुछ लोग जो हैं बात करके एंजॉय करते हैं. सो इट इज़ अप टू देम. और ये कि रेनी डे जो है, जो फर्स्ट लाइन है, रेनी डे इंजॉय किया जा सकता है बाय हियरिंग द साउंड्स ऑफ द रेन, बाय लिसनिंग टू द साउंड्स ऑफ द रेन that it creates. This line is important because it is exactly from the poem. Then what would happen when the rain stops? When the rain stops, the sun will shine brightly. जब बारिश रुकेगी तो क्या होगा? सन ब्राइटली शाइन करेगा और एक वंडरफुल लाइट जो है ये फिल कर देगी हर डार्क राउंड ड्रॉप को, रेन ड्रॉप को, और ये खूबसूरत मंजर होगा. इट विल बी अ ब्यूटीफुल सीन. व्हाट डज द पोएट होप एट द एंड ऑफ द पोएम? सो उसकी होप क्या है? अब हमने डिस्कस किया है इसको ऑलरेडी कि क्लास सेग्रीगेशन के बारे में पोएम है. सो पोएट की होप ये है कि sun will come out. Symbolically, the sun stands for equality between the rich and the poor and prosperity among the people in future. So future में लोग successful होंगे और सबको equally treat किया जाएगा. Then we have what is the theme of the poem? The rain. So theme of the poem आपको बताया था मैंने क्लास में क्या है. Poet highlights the difference between rich and poor. The poet portrays the falling of rain on the rich leaves and the poor leaves. The top leaves receive rain directly, means the rich get the golden chance first. Whatever remains trickles down, और जो बच जाता है वो नीचे poor leaves को मिलता है कतरा कतरा करके. लेकिन पोइट को उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल्द इक्वालिटी हो जाएगी. What impression does the sound of the rain falling on the leaves give to the poet? किस तरह का इम्प्रेशन मिलता है पोइट को उसकी आवाज़ सुन के. सो द पोइट hears the raindrops falling on the leaves. The poet feels as if the leaves are drinking rainwater. It is a sweet noise to hear. आप ये देखें इन आंसर्स में हमने पोइट की बात को रिलेट करके उसमें आंसर में लिखने की कोशिश की है. मकसद ये होता है कि जितना हम टेक्स्ट के करीब रह सकें उतना हम टेक्स्ट के करीब रहकर आंसर दें. ठीक है. तो इसमें ड्रिंकिंग रेन की बात की है पोइट ने, हमने वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया, और उसने स्वीट नॉइज़ की बात की है वो भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया. और मैंने आपको बताया था कि स्वीट नॉइज़ जो है ये ऑक्सीमोरॉन भी हो सकता है बिकॉज नॉइज़ की नेगेटिव कॉनोटेशन है और स्वीट has a positive connotation. So ये oxymoron है, two opposite ideas being put together here. Then briefly explain the symbolic importance of the poem The Rain. इसमें आपने सारा वही explain करना है कि upper leaves of tree जो हैं वो rich को represent कर रहे हैं, lower leaves represent the poor of the society. Sunshine symbolizes the day when the darkness of poverty will come to an end and there will be fair distribution of the blessings of nature, that everyone will get an equal chance. फिर नेक्स्ट आपका है हाउ डज़ द रेन फॉल ऑन पुअर लीव्स. सो द रेन फॉल्स ऑन पुअर लीव्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक कतरा करके पुअर को मिलती है. दीज लीव्स आर कॉल्ड पुअर लीव्स बिकॉज दे रिसीव रेन इन फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द टॉप वन. सो पहले टॉप वंस को मिल जाती है, उसके बाद पुअर लीव्स को मिलती है. व्हाट डज़ द पोएट मीन बाय रिच लीव्स? वही बात अभी हमने रिपीट की है. रिच लीव्स वो जो अपर लेवल पर हैं, टॉप ऑफ द ट्री पर हैं,
उनको पहले रेन वाटर मिलता है डायरेक्टली, एंड सिम्बॉलिकली इट मीन्स द रिच पीपल ऑफ सोसाइटी हु गेट ऑल बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस, जिनको सारे फ़ायदे मिलते हैं, सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, दैट इज़ एलीट क्लास, अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी। सो ये हमने 8 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन लुक इनटू एनी की बुक इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर देम। क्वेश्चंस बेशक इसमें और भी हो सकते हैं, पर्सोनिफिकेशन के, मेटाफर के। सो आपको इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है और पोएम क्लियर नहीं है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चलें, सी यू इन द क्लास देन। अल्लाह हाफिज़।